Hello students, so today we'll start with a new chapter, that is the selfish giant. So what is the meaning of selfish, children? Selfish means swarthi. Giant means what? Giant means Danav, that is a person who is in a human form but having some magical powers in himself. Okay, so he's a very strong person. So the main character of the story is only this giant, okay, who is very selfish, and they will come across some words also which are difficult, like castle. Castle means killa in Hindi. Then we will have we'll also see a very beautiful garden, that is a giant's garden. Okay, beautiful garden in his castle. And then we'll come across this word spring. Spring means what? Vasant. Okay, and then snow. Snow means himpat or barf, you can say. Then we'll come across this word, that is frost. Frost means tushar. And then we will also come across these are also the characters of the story, that is the children who used to come to the garden of this giant and who used to play and spend a lot of time there. Okay, so now let's start with the story, children. The name of the story is The Selfish Giant, chapter number 11. So let's begin with the story now, children. Long ago there lived a giant in a huge castle. So first of all, selfish. What is the meaning of selfish, children? Selfish means swarthi. Giant means Danav. Danav means, what is the meaning of Danav? Danav means Rakshas. Okay, जो इंसान की तरह फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में होता है, बट you know they are very more powerful. They have some magical powers with them. Okay, they are very huge. जैसे आपको मैंने पिक्चर में भी दिखाया ना. So long ago there lived a giant in a huge castle. जो बहुत सालों पहले एक दानव था, वो कहाँ रहता था? एक बहुत बड़ी किले में रहता था. He was the most selfish giant on this earth. तो ये giant जो है, ये जो दानव है, वो इस दुनिया के सबसे बड़ा स्वार्थी दानव था. He never shared his things. तो वो किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करता था. His castle had a huge garden. उसके जो किला था उसमें एक बहुत अच्छा बगीचा था, बहुत बड़ा बगीचा था. It was large, lovely garden with soft green grass. तो वो बहुत ही बड़ा था और उसमें बहुत बड़ा बगीचा, बहुत सुंदर बगीचा था और जिसमें बहुत soft green grass भी थे. Here and there over the grass bloomed beautiful flowers. There were trees that bore rich fruits. The birds sat on the trees and sang so sweetly. So वो जो घास थे उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल भी ब्लूम किया, ब्लूम. So here and there over the grass bloomed beautiful flowers. There were trees that bore rich fruits. The birds sat on the trees and sang so sweetly. So यहाँ वहाँ पे क्या था? घास थी और उसमें से बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर खिले थे, फूल खिले थे. There were trees that bore rich fruits. तो कुछ पेड़ थे जिसमें बहुत अच्छे फ्रूट्स भी हुए थे, फल भी था. So the birds sat on the trees. जो पक्षी थे उस गार्डन में सारे बैठ के वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गाने गाते थे, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता था. This giant had a friend. The giant's friend invited the selfish giant to his house. The selfish giant accepted the invitation and went to stay with him for a few months. Since the giant was away, the children used to go and play in the giant's garden. So जो giant था उसका एक friend था. तो एक बार क्या हुआ था, giant की friend ने उसको invite किया था अपने घर पे रहने के लिए. तो कुछ महीनों के लिए वो वहाँ पे चला गया. तो जब वो वहाँ पे चला गया था तो वहाँ के जो बच्चे थे वो आके उस गार्डन में, जायंट के जो गार्डन है उस बगीचे में आके खेलने लगा. One day the giant came back. When he arrived, he saw the children playing in the garden. So एक दिन जैसे वो वहाँ से वापस आया तो उसने देखा कि सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे. तो what do you think the giant will do? तो आपको क्या लगता है बच्चों, क्या किया होगा giant ने? What are you doing here? He cried in a gruff voice and the children ran away. तो उसने क्या पूछा बच्चों से कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? बहुत ही गुस्से से पूछा.
बहुत अनफ्रेंडली वॉइस था उसका, ठीक है. दिस इज माई गार्डन सेड द जायंट एंड आई विल नॉट अलाउ एनीबडी टू प्ले इन इट. So he built a high wall all around it and put up a notice board. Trespassers will be prosecuted. So उसने क्या बोला कि ये मेरा बगीचा है और मैं यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं करता हूँ खेलने के लिए. So उसने क्या किया, उसके बाद उसने एक बहुत बड़ा एक वॉल बना लिया, दीवार बना लिया चारों ओर, और उसने एक नोटिस बोर्ड लगा दिया क्या कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब जो भी यहाँ से गुजरेगा या इधर घुसने की कोशिश करेगा उसको मैं पनिशमेंट दूंगा. ओके, उसको हम या तो फाइन करेंगे या तो कोर्ट में ले जाके कुछ ना कुछ उनके ऊपर केस लगाएंगे. ओके, द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नोवेयर टू प्ले. तो अभी बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए, उनके पास कोई खेलने की जगह नहीं थी. तो दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड. तो वो जाके ना रास्ते में ही खेलने लगे. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. जो रोड था वो बहुत ही धूल था, उस रोड में बहुत ही गंदा सा था. सो एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन. उसमें बहुत पथरीले पत्थर होते हैं ना जो, तो पत्थर भी थे. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था वहाँ पे खेलना. हैप्पी वी वर देयर दे सेड टू ईच अदर. सो बच्चे बोलने लगे हम लोग वहाँ पे कितने खुश थे उस गार्डन में. द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वेर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड लिटिल बर्ड्स. Only in the selfish giant's garden it was still winter. The birds did not sing in it. No flowers bloomed. Everyone was sad. The only people who were pleased were Snow and Frost. Snow covered the grass with her big white cloak and the frost painted all the trees white. So then कौन सी सीजन आ गई? स्प्रिंग सीजन. दैट इज योर वसंत ऋतु. ओके, और सारी जगह पे सारी कंट्री में ब्यूटीफुल फ्लावर्स होने लगे, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलने लगे और बहुत सारी बर्ड्स भी आने लगे. बट सिर्फ सेल्फिश जायंट के गार्डन में कुछ नहीं हुआ. वहाँ पे तभी भी सर्दी का मौसम ही था. सो द बर्ड्स जो थे वो भी नहीं वहाँ पे गाना गा रहे थे. सो फ्लावर्स भी नहीं ब्लूम हो रहा था. एवरीवन वाज सैड. द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर हु? स्नो एंड फ्रॉस्ट. सो स्नो आपको पता ही है हिमपत होता है, फ्रॉस्ट मीन्स तुषार. सो स्नो जो है वो सारे घासों को वाइट, जैसे एक वाइट चादर बिछाया हो ना, ऐसे लग रहा था गार्डन को देख के. सो पूरा ही वाइट था. एंड जो फ्रॉस्ट है वो भी पूरे ट्रीज को कवर करके बिल्कुल जैसे पेंट किया गया हो वाइट कलर से, वैसे लग रहा था. तो पूरा गार्डन ही वाइट था. ओके, सो आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई स्प्रिंग इज सो लेट इन माई गार्डन, thought the selfish giant as he sat at the window and looked out at his cold white garden. So वो सोचने लगा कि क्या हुआ, अभी तक क्यों नहीं मेरे गार्डन में क्यों नहीं स्प्रिंग आया, सभी के गार्डन में आ गए. तो वो विंडो के बाहर देख के सोचने लगा, आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर. तो ही सेइंग व्हाट, दैट आई थिंक कुछ ना कुछ चेंज तो होगा वेदर में. बट स्प्रिंग डिड नॉट कम. तो स्प्रिंग नहीं आया उसके गार्डन में. Then autumn gave golden fruits to every garden, but the giant's garden she gave none. तो autumn आया तो उसने सभी gardens को fruits भी दे दी, पर ये जो giant की garden है उसमें उसने कोई fruit नहीं दी. तो why do you think spring did not visit the giant's garden? तो आपको क्या लगता है बच्चों, क्यों नहीं दिया स्प्रिंग ने, क्यों नहीं विजिट किया स्प्रिंग ने giant garden को? One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded very sweet to his ears. A bird was singing in his beautiful garden. It was so long since he had heard a bird singing in his garden. I believe spring has come at last, said the giant as he jumped out of bed and looked out. So एक दिन क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह जायंट सो रहा था. तो जैसे वो उठा तो उसको कुछ सुनाई दिया. क्या सुनाई दिया? बहुत अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा था. तो उसको वो जो म्यूज़िक था वो बहुत अच्छा था. और वो म्यूज़िक किसका था? एक बर्ड की थी, एक पक्षी बहुत अच्छी सुरीली तरह, मतलब वो सुरीली आवाज़ में गाना गा रहा था उस ब्यूटीफुल गार्डन में. सो इट वॉज़ वेरी लॉन्ग. बहुत दिनों के बाद उसको ऐसी म्यूज़िक सुनाई दिया. तो तब वो क्या बोलने लगा, आई बिलीव स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट. तो उसने बोला कि मुझे लगता है अभी स्प्रिंग आ गया है मेरे गार्डन में. जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट. वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और बाहर देखने लगा. व्हाट डिड ही सी? उसने क्या देखा? ही सॉ द मोस्ट वंडरफुल साइट. थ्रू a little hole in the wall the children had crept in and they were sitting on the branches of the trees. तो उसने क्या देखा? उसने बहुत अच्छा दृश्य देखा. दैट वो जो वॉल उसने बनाया था उसमें बच्चों ने क्या किया, एक छोटा सा होल बनाया, ठीक है,
और उसमें से वो अंदर आ गए चुपके से, और वो सारे ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज में, सारे जो पेड़ थे, पेड़ के डालों में बैठ के वो खेल रहे थे. ऑन एवरी ट्री ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड. तो एक एक पेड़ में देख रहे थे कि एक एक बच्चा बैठा है. द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन एंड दे हैड covered themselves with flowers and were waving their arms gently above the children's heads. Birds were flying about and twittering with delight. Flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. The children were playing and laughing. They looked so happy. So, एवरी ट्री, एक एक पेड़ में एक एक बच्चा बैठा था, और जो ट्रीज थे वो बहुत खुश थे बच्चों को. इतने दिनों तक इन्होंने मिस किया ना बच्चों को, तो अभी जैसे बच्चे हैं तो वो ट्रीज भी बहुत खुश थे. और वो अपने ऊपर सारे अपने को किससे कवर किया, फ्लावर्स से, फूलों से कवर किया, और वो अपने ब्रांचेस हिलाने तक. वेविंग देयर आर्म्स मीन्स दे वर वेविंग देयर ब्रांचेस, द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज above the children's heads. Okay, and birds were flying about with twittering. Twittering means बहुत आवाज़ करना. ओके, बर्ड जो थे वो सुरीली आवाज़ में गाना गा रहे थे, चींची करके, विद डिलाइट. उनको वो भी बहुत खुश थे. फ्लावर्स वेर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और फ्लावर्स भी खिलने लगे. एंड लाफिंग. इट वॉज अ लवली सीन. बहुत अच्छा सीन था. द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग एंड लाफिंग. चिल्ड्रन जो था, जो भी बच्चे थे, सारे खेल रहे थे और बहुत खुश थे. दे लुक सो हैप्पी. और बहुत बहुत खुश थे वो बच्चे. The giant's heart melted as he looked out. So जैसे उन्होंने बच्चों को देखा तो उसका भी दिल पिघल गया. How selfish I have been, he said. Now I know why spring would not come here. I will knock down the wall. My garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. So उसका दिल पिघल गया और वो अपने आप को बोलने लगा मैं कितना ज़्यादा सेल्फिश था. ओके, सो उसने क्या किया, उसने जो वहाँ पे जो वॉल था, उसने बोला कि अभी मैं इस दीवार को गिरा देता हूँ और ये जो मेरा बगीचा है ये सारे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनेगा. ओके, सो ही वॉज रियली वेरी सॉरी. वो अपने आप को बहुत कोस भी रहा था और बहुत सॉरी फील कर रहा था कि इसने क्या किया था पहले. सो ही ब्रोक द वॉल अराउंड हिज गार्डन. ही अलाउड द चिल्ड्रन टू प्ले एंड इन हिज गार्डन. सो उसने जो दीवार बना था उसको गिरा दिया और वो उसने अलाउ कर दिया सारे बच्चों को वहाँ गार्डन में खेलने के लिए. Soon his garden was filled with laughter of children. Laughter means हंसना. ओके, खिलखिलाते हुए जो हंसते हैं ना बच्चे, तो उस आवाज़ से पूरा गार्डन गूंजने लगा. ओके, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे सारे, इसीलिए पूरा जो गार्डन है बहुत लग रहा था जैसे वहाँ पे पूरा दिन खुशी का माहौल होने लगा. As years went by, the giant grew old and feeble. तो जैसे ही बहुत सारे साल हो गए तो क्या हुआ था, जो जाइंट था वो ओल्ड हो गया, वो दानव धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और वीक भी. फीबल मतलब वीक. ओके, तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था. ही कुड नो लॉन्गर प्ले विद द चिल्ड्रन. अभी तो वो खेल भी नहीं पाता था बच्चों के साथ. सो वो क्या करता था, ही सैट ऑन एन आर्म चेयर. आर्म चेयर मतलब एक चेयर होती है, उसमें बैठ के वो बच्चों को देखता, जो आपने तस्वीर में भी, पिक्चर में भी दिखाया था ना मैंने आपको, आर्म चेयर. एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले. और वो बच्चों को खेलते हुए देखता था, उसको बहुत अच्छा लगता था. सिंस देन स्प्रिंग नेवर फॉरगेट्स टू विजिट द जायंट्स गार्डन. तो तब से स्प्रिंग कभी भी नहीं भूलता था उसके गार्डन में आना. ठीक है, तो ये जो स्टोरी है, इट इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड. इज़ अ वेरी गुड रिनाउंड राइटर. एंड व्हाट इज़ द moral of the story, children? Happiness lies in sharing and caring. So you can be happy only if you share your things with your friends. ओके, फ्रेंड्स नहीं, सबके साथ आप अगर शेयर करोगे तभी आप भी खुश रह पाओगे. हर एक चीज़ अगर आप शेयर करोगे, नॉट ओनली थिंग्स बट ऑल्सो योर emotions, whatever is there, you have to share and you have to care. If you share and care others, then only the people will also share and care about you. So that is why it said that happiness lies in sharing and caring. आपको एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए और एक दूसरे को केयर भी करना चाहिए. ओके.